Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another video under Mission 9 July 2020. So as you have seen in the thumbnail that today we are going to discuss few important tips and key strategies that should be followed for the preparation of upcoming board examination. And before starting for today's video, I would like to request you to please subscribe my channel if you are new on this channel. So let's start today's video. So first of all, we will discuss the blueprint of question paper because before making any strategy, we should know about the pattern of the question paper. Okay, so let's have the blueprint. You will have 20 questions of 1 mark in your paper that will become 20 marks in all. Then 5 questions of 3 marks that will become 15 marks. Then 3 questions of 4 marks each that will become 12 marks. Then 3 questions again for 5 marks each and that will become 15 marks, and 3 questions again for 6 marks each for 18 marks. And in this way you will have total 34 questions for 80 marks. And a very important thing that you should know, there will be an internal choices in the questions of 3 marks, 4 marks, 5 marks and 6 marks. Okay, you will have total 6 choices. 1 choice in 3 marks question, 1 choice in 4 marks question, 2 choices in 5 marks question, and again 2 choices in 6 marks question. Okay, in that way it will help a lot to make your paper easier. Okay, so be careful to select out of the given choices in your paper. So let's move on to the next part of the video. Now I'm going to show you the bifurcation of marks chapter wise, how your 80 marks is divided into all the 12 chapters. Okay, so first of all, 16 marks, one of the highest weightage mark, and this is given to 3 chapters, that is nature and significance of management, the first chapter, then principles of management, and the third one, business environment. All the 3 chapters combinedly given 16 marks weightage. Then 14 marks weightage, and these are for 2 chapters, that is for planning and organizing. तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि 2 चैप्टर में 14 मार्क्स, दैट इज क्लियरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारे लिए, है ना, काफ़ी हाई स्कोरिंग. देन मूव टू द नेक्स्ट यूनिट फॉर 20 मार्क्स, मोस्ट हाईएस्ट मार्क्स, एंड दैट गोज टू स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. है तो बहुत छोटे छोटे नाम, 3 चैप्टर्स, लेकिन है काफ़ी लेंदी. यस, नो डाउट कंट्रोलिंग एक छोटा चैप्टर है, रेस्ट स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एक लेंदी चैप्टर्स है. स्टिल 20 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा मार्क्स है हमारे. देन नेक्स्ट 15 मार्क्स फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, एंड रेस्ट 15 मार्क्स फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. And this last section is the most easiest section of the whole syllabus. Now let's move on to the next part of the video. How your 80 marks will is divided for your paper. First of all, 32 marks, that is equal to 40% weightage is given for the direct question. Okay, and 60% weightage, that is equal to 48 marks, is given to either indirect question and case studies question. So this 60% weightage is very important, है ना. So now let's move on to the next section of the video. I'm going to show you the various types of objective questions that may become in your examination. First one is multiple choice questions, then fill in the blanks, true and false, one word to one sentence, match the following, indirect questions, and no doubt case studies question. So all these are the pattern of objective type questions, and any of them may come in your examination. Okay, you have to prepare accordingly. Then types of short answers and long answers questions, direct question, indirect question, and obviously case studies question. Okay, so all these are the pattern of your paper. Now let's have the main thing, that is useful important tips, 10 useful important tips. And I guarantee if you follow all the important useful tips which I am going to give you in this video, if you follow all, then definitely you will secure a very good mark. Now let's start. The first tip: make a list of high weighted chapter and find the unit with least number of chapters, and then give rank wise priority to these identical chapters. तो जैसा आपने देखा अभी
पूरे 12 चैप्टर्स को किस तरह से बाइफरकेट किया गया। तो जैसा मैंने कहा कि आप पता लगाइए हाई वेटेज चैप्टर, जैसे कि आपका 20 मार्क्स हाई वेटेज चैप्टर था, बट उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स या उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी लंबी है। ऐसे ही हमने देखा एक और चैप्टर जिसमें कि हमारे 14 मार्क्स थे और 2 ही चैप्टर्स थे उसके अंदर। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लो कि आप किस चैप्टर को प्रायोरिटी देंगे और सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, डू नॉट फॉलो चैप्टर वाइज रिवीजन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कोशिश करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करते हैं। होता क्या है इससे, आप जैसे ही 2, 3, 4 चैप्टर को रिवाइज कर लेते हो, देन आगे बढ़ते जाते हो, तो धीरे धीरे फिर ये फीलिंग आती है आपको कि आप पिछला भूलते जा रहे हो, है ना। तो डू नॉट डू दैट। आपका 1 महीने से भी अब कब समय लगभग आसपास समय रह गया है, तो डू नॉट फॉलो चैप्टर वाइज रिवीजन। आपको कैसे करना है मैं आगे इस वीडियो में जरूर शो करने वाला हूं आपको, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये है मेरी तरफ से टिप, टेक 3 चैप्टर्स एट वंस, डोंट मेक इट प्रेशर कुकर। सो इट्स अप टू यू। मैंने अब एक एवरेज बेसिस पर बच्चों के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया है। 3 चैप्टर ही एक साथ लो आप, ठीक है। एंड अपने दिमाग में इतना प्रेशर मत क्रिएट करो कि यू विल फील लाइक अ प्रेशर कुकर, है ना, जो कि आने वाले समय ब्लास्ट हो जाए, ऐसा नहीं। 3 चैप्टर्स को ही एक साथ लो, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, ठीक है। देन एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्लानिंग। ऑब्वियसली हमें पूरे 12 चैप्टर को कवर अप करना है, तो किसी भी सीक्वेंस में हमने 3 चैप्टर उठा लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एंड प्लानिंग को। तो देख सकते हो मैंने जो एग्जांपल बनाया है ये इजी भी है समझने के लिए, एज वेल एज स्कोरिंग भी है। तो इन सबको मैंने मिलाकर एक 3 चैप्टर का कोलाज प्रिपेयर कर लिया है, एंड अकॉर्डिंगली अब इस पर स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। और क्या क्या स्ट्रैटेजी है, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ईजी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है आप सभी के लिए। आप एंड तक वीडियो देखिए, आप सभी को बहुत फायदा मिलेगा। So next point. First of all, try to write all the topics and its points in a notebook as a revision and summary work. ठीक है, जो आपने चैप्टर सेलेक्ट किए हैं 3, जैसे मैंने एग्जांपल में लिए, आप उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स के पॉइंट्स को जरूर से जरूर लिखिए अपने नोटबुक में, ओनली पॉइंट्स को, एक्सप्लेनेशन को नहीं, एंड दैट विल हेल्प एज अ रिविजन वर्क एंड समरी वर्क, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर इस चैप्टर को हमें समराइज करना है तो अपने नोटबुक में हम क्या लिखेंगे जिससे वो चैप्टर पूरा समराइज हो जाए। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मेक इट्स लिस्ट। You need to make a list only, need not to explain all the parts of features. Then importance of business environment, and again you need to make list only, and then followed by components of business environment. And as you know, there are 2 components of business environment. First one is internal, and again you need to make the list. Then external environment, and it is further divided into micro and macro environment. So you need to write the micro environment and its list, then macro environment and again its list. List मतलब समझ रहे हो होप सो आप कि उसके अंदर जितने भी सब पॉइंट्स या सब टॉपिक्स हैं, ओके। then list of economic reforms since 1991 LPG, that is LPG, and then impact of changes in government policies on business and industry, and again you need to make list. So जैसा आप देख पा रहे हैं, all these are the related points from the chapter business environment, and इसी तरह से जो 3 चैप्टर्स आप सेलेक्ट करोगे पर डे, उन सभी चैप्टर्स में आपको सेम ऐसे ही उस चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को एज अ समरी, हेडिंग, सब हेडिंग को लिखते जाना है अपने नोटबुक्स में, ओके। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट टिप, लर्न ऑल द डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट हैज ऑलरेडी केम इन एनी ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को ही हमने अभी कैटेगराइज किया, आप अपने रेफरेंस बुक को यूज़ करिए, आप जहाँ से इंटरनेट से यूज़ करिए, आप देखिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इन द सेंस सिंपली कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप लिस्ट बनाइए या वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उनको रीड आउट करिए, अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। बट ओनली वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी साल आ चुके हैं, दैट विल मेक द चैप्टर द क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन द नेक्स्ट टिप, प्रैक्टिस एनी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द सेलेक्टेड चैप्टर्स। तो आपने 3 चैप्टर सेलेक्ट किए, 10 into 10 10 plus 10 plus 10, दैट मीन्स 10 into 3 टोटल 30 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। कहने के लिए 30 क्वेश्चन बहुत हैं, बट बहुत नहीं है, बिकॉज दीज आर द
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। तो आप कोशिश करना कि जितने भी मैंने लिस्ट बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, सबको उसमें कवर अप कर सको। दैट्स वाई मैंने 10 को कंसिडर करने को कहा है। एंड 30 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा, एंड दैट विल प्रिपेयर द चैप्टर इन डीप। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, डू प्रैक्टिस ऑफ 2 केस स्टडीज क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर कैरिंग 6 मार्क्स। आप जैसे जानते हो कि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन सभी बच्चों के लिए केस स्टडी ही होता है, ठीक है। तो 6 नंबर का जो केस स्टडी का क्वेश्चन होता है उसकी प्रैक्टिस करोगे आप डेली, 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से। तो जैसा हमने 3 चैप्टर सेलेक्ट किया है एक दिन के लिए, तो 3 चैप्टर्स इनटू 2 केस स्टडीज, दैट विल बी 6 केस स्टडीज क्वेश्चन। ओके, in this way you can revise thoroughly 12 chapters within 4 days. Now consider it कि आप एक दिन में 3 चैप्टर को इस तरह से अगर पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूअसली 4 डेज में कितने चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा बुक पढ़ लोगे आप, फॉर ऑल द 12 चैप्टर्स, है ना। तो 3 चैप्टर्स इन अ डे एंड इनटू 4 डेज, दैट विल बिकम द होल सिलेबस। तो इस तरह से आप सिर्फ 4 दिनों के अंदर में ही अपने पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, है ना। देन द नेक्स्ट टिप, कीप नेक्स्ट 2 डेज। मैंने पूरे एक वीक को शेड्यूल में ले रखा है। ओके, 4 दिन हो चुके हैं, 2 दिन अगले क्या है, तो कीप नेक्स्ट 2 डेज फॉर प्रैक्टिस ऑफ सैंपल पेपर सजेस्टेड बाय CBSE. Solve the paper by following the given time structure by the board, and that is reading time 15 minutes and writing time 3 hours. जैसा आप सभी को बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस हो चुका है, 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलता है एंड 3 hours कंप्लीटली फॉर राइटिंग। तो उसी टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अगले 2 दिनों में एक एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इन द वीकेंड, दैट इज ऑन द 7th डे, डू द एनालिसिस वर्क ऑफ योर सैंपल पेपर सॉल्यूशन। जो आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया है उसका अब एनालिसिस करना है आपका अगला काम, एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लमैटिक एरियाज एंड द डाउट्स। अब जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आई है उनको पॉइंट आउट करिए एंड डाउट्स को निकालिए। ट्राई टू वर्क ऑन इट इन द नेक्स्ट वीक। तो जैसा आप देख पा रहे हो पूरे एक वीक का सोल्यूशन पूरा हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीक में उस सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगले वीक को और बेहतर करना है। सो इन दिस वे यू कैन रिवाइज फॉर योर पेपर इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, और बहुत ही कम समय में इन अ वीक आप बहुत अच्छे डीप तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो और हर एक कॉर्नर को। तो होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, एंड आप इस चैनल को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक्स यू।